Good morning, students. I am Meenal Murhekar, welcoming you in the online tutorial of Shri Eknath Rao Khadse Talent School, Muktaing Nagar. Today, I am here to take your second chapter of science from class 7, that is nutrition in animals. In previous video, we have learned about the first chapter, that is nutrition in plants. Now, we are going to learn about the second chapter, that is nutrition in animals. So in first chapter what we have learned about that plants prepare their own food with the process known as photosynthesis, and thus these plants are known as what? These are known as autotrophs, and animals who are dependent upon plants, they are known as what? Heterotrophs. So in animal nutrition, three processes are there in which nutrition is completely absorbed. And what are these? These are animal nutrition includes nutrient requirement. What is the requirement of nutrients? We have learned about nutrients. Nutrients are what? Components of food. So these components of food are required by our body. Then mode of intake is necessary. By which mode we are going to take that food inside, that is necessary. And third is, when we have intaken that food inside, it is needed to be utilized by our body. Then only we gain energy. Yes, then only we gain energy. That's why these are the three modes through which animal nutrition is dependent. One is nutrient requirement, second is mode of intake of food, and third is utilization of food by the body. Now, we take food inside, and that food is in complex form, means so many components are there, and that complex food, when we intake, what happens in our body? The breakdown of that complex components takes place. So this breakdown of complex substances into simple substances is known as what? It is known as digestion. Right? Our body is doing what? Our body is converting that complex substances which we are taking inside, convert that complex substance into simpler form, and that simpler forms are get utilized by our body. Right? So this process is known as what? This is known as digestion. Now here we will learn about different ways of taking food. Right? How are the modes of taking food are different organisms take food by different modes, है ना? Like bees and hummingbird sucks the nectar. What they used to do? They sucks the nectar. You know nectar na, juices of plants, right? So they used to suck that nectar. Infants of human and many other animals feeds on what? They feeds on mother's milk. Like, right? Snakes like python, what it used to do? It swallows the animal, right? It swallows the other animal. Some aquatic animals like they filter the food particles that are floating nearby and feed upon them only. So these are the different modes of ways of taking food. Right? So here one table is given. In this you have to write down that which animal has which mode of feeding. Here examples are given like scraping, chewing, symphoning, capturing and swallowing, sponging, sucking. So these are the processes, these are the modes of taking food. So you have to write the correct one inside there before means in front of these names. Okay, now here we come to the digestion in humans. How digestion in humans takes place. Okay, so how it does takes place? How we take food inside? We take food inside through our mouth,
and it is digested in our body and get utilized by our body. The unused part of the food are defecated. The food that is not used by our body, that is expelled out of the body. It means it is defecated out of the body. So have you ever wondered what happens to the food inside the body? What happens with the food inside our body? The food passes through a continuous canal which begins in the buccal cavity. See here in the diagram we can see that one complete canal is there, right? So here food passes through a continuous canal, right? Canal means pipe like structure. Okay, so from where this canal begins? This canal begins with the starting of this buccal cavity, right? This is the mouth is known as buccal cavity. Then buccal cavity is further opened in food pipe. That food pipe is known as what? Esophagus. Then this esophagus is connected to the stomach. Then stomach is connected with the small intestine, and then this small intestine is connected with the large intestine, and in the ending what is there? There is rectum and anus. Okay. So it is not a very long, is it not a very long path? Yes, it is a very long path. These parts together form the alimentary canal. So we have seen this canal, or we have seen this track. So this track is known as what? This track is known as alimentary canal or digestive tract of humans. Okay. So the food components gradually get digested as food travels through the various compartments. Now the inner wall of the stomach and the small intestine of various glands associated with the canal, such as salivary gland. What? The small intestine and the stomach are these are associated with various glands. Okay, with canal. Such as, which are the glands which are associated with the canal? These are salivary glands, liver and pancreas. What is the function of their function is to secrete digestive juices. And what these digestive juices used to do? The digestive juices converts that complex substances of food into simpler ones. Okay, so the digestive tract and the associated glands together constitute our digestive system. These digestive tract from buccal cavity to the anus and the glands which are associated, that are salivary gland, liver and pancreas, constitute our digestive system. Now we will learn one by one the parts. Okay. So first part is the mouth and the buccal cavity. What it is? The mouth and the buccal cavity. In this buccal cavity, what happens here? The ingestion of food, taking of food is carried out by our buccal cavity. The food is taken into the body through the mouth. Okay, the process of taking food into the body is called ingestion. What it is called? It is known as ingestion, right? We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. What our teeth used to do with the food? We take the food and that food is chewed by our teeth. And by chewing, what happens? The food is getting converted or getting cutted into small pieces. So each tooth is rooted in separate socket in the gum. Our teeth vary in appearance and perform different functions. So do you know our mouth has 4 types of teeth, and all these 4 types of teeth are fitted in different types of socket. Why they are required with the different types of socket? Because the shape of the teeth are different and they need different sockets to get adjusted. That's why the sockets are different. Accordingly, they have given different names.
Now look at here. See here, the starting four teeth in front teeth, front four teeth are known as what? Incisors. Then next to the incisors, what are present? Next to the incisor, one canine teeth are present, and these canine teeth are very sharp in animals. Have you seen that? Teeth of dogs, these are very sharp, right? So these are known as what? Canines. Now next to the canines, what are present? These are premolars, right? And after that premolars, what are present? Molars. Molar teeth are also known as what? Molar teeth are known as wisdom teeth, as they came when we get aged. Okay, so now we will see the function of these teeth. What are the functions? See, cutting and biting. Cutting, what the incisors do? The function of incisors is to cut the food. The front teeth helps in what? We take some fruit and take inside our mouth. So first, which teeth work? First, incisors are there which help the food in cutting. Okay, so in cutting and biting teeth are known as what? These are incisors. Now second type of teeth are canines. These canines are known as what? Piercing and tearing teeth. Piercing, katna, fadna. This is known as piercing and tearing teeth. So these teeth are known as canine teeth. So how many canines you have? You have two canines, two lower side and two upper side, and incisors, four lower side, four in upper jaw. Okay, so we have in total four incisors. Now molars and premolars. Premolars and molars are used for chewing and grinding. To chew the food, चबाने के लिए, और ग्राइंड, उनको बारीक करने के लिए कौन से टीथ यूज़ होते हैं? मोलार्स और प्रीमोलार्स. ओके, सो वो कितने होते हैं? सी, प्रीमोलार्स आर 2 to both side, means 4 in lower jaw and 4 in upper jaw. And molars are what? Molars are also 4 in lower jaw, 4 in upper jaw, right? So cutting and biting teeth are 8, as incisors are there. Piercing and tearing teeth are, these are also 4. These are 4 in number. And chewing and grinding teeth, these are also 8 in number, as 4 are downside premolars, 4 are upside, right? Then molars, 4 downside, 4 upside, 8, means 16 are the teeth which help in chewing and grinding, 4 are the ones which helps in piercing and tearing, and 8 are the ones which helps in cutting and biting the food. Okay, now here you have to perform your one activity. And what are these? What is this? Take two test tubes, label them A and B. In test tube A, put 1 teaspoon of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoonful of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. Now what you have to do? You have to take 2 test tube and you have to name that A and B. And what you have to do? In one test tube you have to add boiled rice, and in another one you have to add chewed rice that you have chewed for 3 to 5 minutes at least. Now here you have to do what? Add 3 to 4 ml of water in both the test tubes. Now pour 2-3 drops of iodine solution in each test tube and observe. What will be observed? The change in color will be observed.
what will happen here? There is a change in color. What change in color? That the saliva breaks down the starch into sugar, right? That's why the change in color happens. The tongue is fleshy muscular organ attached at the back of the floor. Okay. Floor of the buccal cavity. It is free from the front and can move in all directions. Yes, our tongue can move in all directions, right? So what is the function of tongue? We use our tongue for taking, beside it mixes saliva with the food during chewing and help in swallowing food. Okay, and also with the help of tongue, what we are able to do? With the help of tongue we can taste the food too. Okay, now see here, regions are given, regions of the tongue for different tastes, right? These are the regions which taste different. Okay, now the next part after the mouth which comes is after the buccal cavity. The buccal cavity gets opened into food pipe, and that food pipe is also known as what? The food pipe is known as esophagus. So the swallowed food is passes into the food pipe, or you may say to esophagus. See here this esophagus. Now what happens? What happens inside this food pipe? See, the swallowed food passes into the food pipe or esophagus. The food pipe runs along the neck and the chest. चेस्ट में भी आपका ईसोफेगस ही रहता है और नेक में भी आपका ईसोफेगस ही रहता है. जो फूड है वो पुश होता है मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप. जो फूड पाइप है उसकी जो वॉल्स है वो एक मूवमेंट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आपका फूड जो है अंदर के साइड जाता है. और ये मूवमेंट किसकी वजह से होता है? ये मूवमेंट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल की वजह से होता है, जो फूड को नीचे धकेलता है. और जब हमारा जो स्टमक है वो उस फूड को एक्सेप्ट करना बंद कर देता है, तब क्या होता है? तब हमें वॉमिटिंग होती है. ओके, वॉमिटिंग होती है ना. तो क्यों होती है वो? क्योंकि हमारा स्टमक जो है उस फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट जो है, जो फूड पाइप ईसोफेगस से कनेक्टेड है, वो क्या है? स्टमक. स्टमक में क्या होता है? स्टमक जो है वो एक वेरी थिक वॉल्ड बैग है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जे शेप्ड फ्लैटन्ड स्ट्रक्चर है. जे जैसा दिखता है ना. सी द पिक्चर ऑफ स्टमक. सी, इट्स अ जे लाइक स्ट्रक्चर. Its shape is like a flattened J and it is the widest part of the alimentary canal. ये जो है सबसे चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का. हमने स्टार्टिंग से देखा फ्रॉम द बकल कैविटी it is just like a tube like structure and there is no width of it. बट जो स्टमक है दैट इज़ अ वाइडर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप. इसमें फूड कहाँ से आता है? फूड पाइप से आता है एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट अदर. और वो फिर फूड जो है ऊपर रीजन से आता है. ऊपर फूड पाइप जो है वो कनेक्टेड होता है स्टमक से, और जो नीचे वाला पार्ट है स्टमक का वो किससे कनेक्टेड होता है? वो कनेक्टेड होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से. ओके, और फिर अब हमने बाहर से स्टमक को देख लिया. अब अंदर क्या है स्टमक के, हम वो देखेंगे. क्या होता है? द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. अब जो स्टमक की अंदर की लाइनिंग है, स्टमक की भी
लेयर्स से मिलके बना होता है हमारा स्टमक भी। तो जो सबसे अंदर की लेयर है वो क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस। म्यूकस ऐसा चिपचिपा पदार्थ होता है जो स्टमक सिक्रीट करता है, ठीक है। फिर उसके साथ और क्या? म्यूकस, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाम सुना होगा ना आपने? हाँ, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसके साथ कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो है स्टमक सिक्रेट करता है। क्यों सिक्रेट करता है? ताकि ये सारी चीज़ें जब हमारे फूड के साथ मिलती है तो हमारा फूड इजीली डाइजेस्ट होता है, राइट। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ये जो म्यूकस होता है जो सिक्रीट हो रहा है वो क्या करता है? हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। जो एसिड होता है वो क्यों होता है? वो एसिड जो होता है, जो बैक्टीरिया हमारे फूड में आए हैं उनको किल करता है। और स्टमक का जो pH है उसको एसिडिक बनाता है, एसिड, ओके। Now, the digestive juices break down the protein into simple substances. अभी क्या होता है कि हमारा जो फूड है उसमें हम क्या क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं। तो जो फूड हमने लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, बट इसको हमको हमारी बॉडी जो है स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जो डिवीज़न है सिंपलर पार्ट्स में वो कहाँ हो जाता है? वो आपकी सलाइवा में ही हो जाता है, ओके। सलाइवरी ग्लैंड ही उसको कुछ ब्रेक कर देता है। बट जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन है वो कहाँ पर होता है? वो आपके स्टमक में होता है। इसलिए ये जो डाइजेस्टिव जूसेस स्टमक हमारा सिक्रीट करता है वो हेल्पफुल होता है प्रोटीन के ब्रेक डाउन में। सिंपलर पार्ट्स में टूटने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? डाइजेस्टिव जूसेस, ओके। अब हो गया स्टमक का रोल। अब जो है फूड कहाँ आ गया? फूड अब आएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा है? स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही कॉइल्ड है। सी, कॉइल्ड मतलब घुमा हुआ है। ये दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन कितना कॉइल्ड है? Yes, small intestine is highly coiled and it is about 7.5 meter long. Okay, it is about 7.5 meter long, right? And it secretes what? It receives secretion from the liver and pancreas. अब इसमें क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ जूसेस जो हैं वो आते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, और वो डाइजेस्टिव जूसेस कौन देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को? वो देता है लिवर और पेनक्रियाज। और इसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स भी खुद और कुछ लिक्विड, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती है, ओके। नाउ जो लिवर होता है वो लिवर किस कलर का होता है? लिवर जो है रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है जो कहाँ रहता है? ऑन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। स्टमक जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है अपना थोड़ा सा टिल्टेड, और राइट साइड पे क्या होता है? लिवर होता है। इट सिक्रेट्स बाइल जूसेस। क्या सिक्रेट करता है वो? बाइल जूसेस। और इट स्टोर्ड बाइल जूस इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। और वो जो है बाइल जूसेस वो एक ब्लैडर जैसे स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। सी हियर, एंड दिस ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? गॉल ब्लैडर, ओके। यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस जो सिक्रेट किए गए हैं बाइल जूसेस पेनक्रिया द्वारा वो यहाँ स्टोर होते हैं, राइट। फिर द पेनक्रिया इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अब स्टमक के नीचे एक ग्लैंड और प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं पेनक्रिया। और पेनक्रिया क्या करते हैं? पेनक्रिया, द पेनक्रियाटिक जूस
एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। अब प्रोटीन का तो ब्रेक डाउन हो गया और थोड़ा जो है कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हमारे मुंह में हो गया। सो बचा हुआ जो कार्बोहाइड्रेट है उस पर क्या वर्क करेगा, उस पर हमारे पेनक्रियाटिक जूस वर्क करेगा। ठीक है, ये पेनक्रियाटिक जूस क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स तीनों को चेंज करेंगे सिंपलर सब्सटेंसेस में। और फिर ये जो फूड है, अब जो ये फूड है, ये फूड जाएगा अब कहाँ, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें अपने जूसेस ऐड करेगा। फिर यहाँ पर जो है वापस से जो कार्बोहाइड्रेट है बचा हुआ, वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। जैसे कि सिंपल शुगर कौन सी होती है हमारी, सबसे सिंपल ग्लूकोज होती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा। और जो हमारा प्रोटीन है वो कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड में। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमारा फूड जो है छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया है, कहाँ पर आकर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ अब जो ये फूड है इसका एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, टूट गया वो छोटे छोटे पार्ट्स में, अब हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करेगी। तो वो कहाँ एब्जॉर्ब करेगी, द फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पासेस इनटू ब्लड वेसल। अब जो फूड हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया वो हमारी इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्ब करेगी और इस प्रोसेस को मतलब हमारी ब्लड वेसल्स में जाएगा वो, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। जो हमारी इनर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसको थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हैं। मीन्स ऐसे बारीक फिंगर जैसे कुछ स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाय। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये विलाय जो है हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्ब्ड फूड के। सो each villus has a network of thin and small blood vessel close to its surface। और इस विलाय में हर विलाय जो है कनेक्टेड होता है, किससे कनेक्टेड है, वो ब्लड वेसल से। सो द सरफेस ऑफ द विलाय एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और ये जो है ये कनेक्टेड है ब्लड वेसल से, सो इसलिए डाइजेस्टेड फूड सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब करेगा, विलाय एब्जॉर्ब करेगा। फिर विलाय से वो कहाँ जाएगा, उसमें ब्लड वेसल्स हैं तो ब्लड वेसल्स में जाएगा, और ब्लड वेसल्स से किस में जाएगा, ब्लड में जाएगा। और ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में होता है, तो इस प्रोसेस से पूरी बॉडी में वो फूड हमारा चला जाएगा। ओके, नाउ the surface of the villi absorb the digested food material. The absorbed substance are transported via blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as protein required by the body. This process is called assimilation. क्या होगा, पहले हमने फूड को तोड़ा, स्मॉल सब्सटेंस में तोड़ा और हमारी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब किया, और फिर यही स्मॉलर सब्सटेंस वापस जब ब्लड में गए, हमारी मीन्स डिफरेंट पार्ट्स में गए, तो ये वापस जाके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में जाके वहाँ स्टोर हो गया। जैसे कि कुछ प्रोटीन्स के फॉर्म में जाके वो वहाँ स्टोर हो गया हमारी बॉडी में। क्यों स्टोर हो गया, ताकि हमारी बॉडी उसको यूज़ कर सके जब भी रिक्वायर्ड हो। तो ये जो प्रोसेस है कि फूड का वापस से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होके स्टोर होना हमारी बॉडी में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। ओके, अब क्या होता है, यहाँ तक तो हमारा फूड एब्जॉर्ब हो गया। अब जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वो फूड जो अनडाइजेस्टेड है और अनएब्जॉर्ब्ड है, वो कहाँ जाएगा, अब वो आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है
ये स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, पर मीन्स चौड़ा होता है, पर उसकी जो लेंथ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। इसकी कितनी लेंथ होती है? 1.5 मीटर लेंथ होती है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि जो वाटर और कुछ सॉल्ट्स हमारी बॉडी में जो अनवेस्टेड मतलब मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड में बच गया है उसको वो डाइजेस्ट कर लेगा। सो द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम। अब क्या होगा? अब पानी और सॉल्ट भी एब्जॉर्ब हो गए और अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो रिमेनिंग पार्ट आपका चला जाएगा रेक्टम में और वो कन्वर्ट हो जाएगा एक सेमी सॉलिड फीसेस में। और फिर ये जो फीकल मैटर है ये हमारी बॉडी से निकाल दिया जाएगा थ्रू द एनस। ओके, ये हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। किससे? एनस की मदद से। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजेशन। वो फूड जो है इजेक्ट हो रहा है हमारी बॉडी से, इसलिए उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजेशन। सो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या देखा? हमने 4 प्रोसेसेस देखी। क्या क्या देखिए? सबसे पहले हमने खाना लिया अंदर, ठीक है, अंदर लिया तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? इंजेशन बोला। ठीक है, फिर उस फूड का क्या हुआ? वो फूड हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, उसका डाइजेशन हुआ। ठीक है, डाइजेशन होने के बाद क्या हुआ? उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। फिर एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या हुआ? वो स्टोर हुआ हमारी बॉडी में। स्टोर हुआ तो कौन सी प्रोसेस हुई? एसिमिलेशन हुआ। फिर जो बचा कुचा है वो हमारी बॉडी से बाहर इजेक्ट हो गया, निकाल दिया गया, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? इजेशन। ठीक है, तो ये तो हमने बात की कि एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि मीन्स हमने देखा ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है, अब हम देखेंगे कि एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है। सो लेट्स सी। आपने कभी देखा है गाय को, भैंसों को, वो कंटिन्यूअसली मुंह चलाती रहती हैं, ऐसे ऐसे च्यू करती रहती हैं, करती है ना? भले ही वो कुछ खा रही हो चाहे ना खा रही हो, पर उनका मुंह ऐसे च्यू करता ही रहता है कुछ सब्सटेंस। देखा है ना आपने? यस। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि वो क्या करती हैं, जब खाना अपना खाती है, जब घास अपना खाती है, तब वो फट से घास को कट करके अपने पेट में फटाक से स्टोर कर लेती हैं। भलाई फिर उनको एनर्जी मीन्स वो डाइजेस्ट हुई हो चाहे ना हुई हो, वो वहाँ जाके उनको स्टोर कर लेती है। और वो जो स्टमक होता है उनका, जहाँ वो स्टोर करती है, उनको क्या कहते हैं? र्यूमन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? र्यूमन। फिर क्या होता है? वो फूड जो है पार्शियली डाइजेस्ट होता है। यहाँ पे जो फूड है वो थोड़ा सा ही डाइजेस्ट होता है और उस थोड़ा सा मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं। ठीक है, पर ये जो कर्ड है ये इनके मुंह में वापस आता है क्योंकि ये कम्प्लीटली तो ब्रेक डाउन नहीं हुआ है उस फूड का। सो इसलिए ये जब फ्री होती है ये गाय, तब क्या करती है? चलते चलते इनका ये जो फूड है ये इनके मुंह में वापस आ जाता है, जो कि अनडाइजेस्टेड है, जिनका ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, और उस टाइम वो उसको चबाती हैं। इस वजह से क्या होता है? ये उस टाइम पे उसको च्यू करके फिर डाइजेस्ट करती है। So later the curd returns to the mouth in small lumps and the animals chews it. This process is called rumination. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? rumination. And these animals are called ruminants. और इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? इन एनिमल्स को हम कहते हैं ruminants. फिर ये जो एनिमल्स है ये क्या खाते हैं? मोस्टली ये घास खाते हैं, और घास में क्या होता है? सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज होता है। ठीक है, एक सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या जाता है? ग्लूकोज जाता है, स्टार्च जाता है,
वैसे ही ये जब जो खाना खाते हैं इनको क्या मिलता है उस खाने में, सेल्यूलोज मिलता है। नाउ सारे जो ह्यूमन एनिमल्स है ये सब यही खाते हैं, पर ह्यूमंस जो है हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सारे जो एनिमल्स है ये क्या होता है, इनके पास एक बैक्टीरिया होता है जो ह्यूमंस के पास नहीं होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? सेल्यूलेज नाम का बैक्टीरिया इनमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। और ये बैक्टीरिया ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम घास नहीं खा सकते। देखा हमने रूमिनेंट्स में भी फूड का डाइजेशन देखा। अब हम देखेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ये होता है अमीबा। ये क्या है? ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मीन्स अपन कैसे अपनी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी है, बट ये क्या है? ये ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इसको हम क्या कहते हैं? अमीबा कहते हैं। ये हमको नेकेड आइज से नहीं दिखता, खुली आंखों से नहीं दिखता हमें। ये हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिख सकता है। ये देखें अमीबा का हम स्ट्रक्चर। ये जो अमीबा की आउटर लेयर है, आउटर कवरिंग है, इसको हमने क्या बोला है? इसको हमने बोला है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अ राउंडेड डेंस अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। कहाँ मिलता है? ये पानी में मिलता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, बाहर की जो लेयर है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, जो ये है बहुत बड़ा डेंस लाइक गोल ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और बहुत सारी उसमें वैक्यूल्स होती हैं। और इसकी एक खासियत ये होती है कि ये जो है पूरा अंदर फिल्ड होता है। साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड इसके अंदर भरा है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हमने क्या बोला है? उसको हमने बोला है साइटोप्लाज्म। और इसमें बहुत सारी वैक्यूल्स हैं। ये वैक्यूल्स क्या करती हैं? इन वैक्यूल्स के कारण जो शेप है अमीबा का वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। अमीबा कंटिन्यूसली चेंजेस इट शेप्स एंड पोजीशन। इट पुशेस आउट वन मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड शूडोपोडिया। इनका क्या है? ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। सी हियर, दिस इज़ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है? शूडोपोडिया इसको कहा जाता है। इसके थ्रू वो क्या करते हैं? इसके थ्रू वो मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसे घूम के फूड को कैप्चर कर लेते हैं वो, ठीक है, और फिर वो उनकी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। अब अमीबा क्या खाता है? अमीबा भी क्या खाता है? वो खुद एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए वो दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पे फीड करता है। जब उसको दिखता है कि उसका फूड सामने है तो क्या करता है? उसका जो शूडोपोडिया है उसको पुश करता है, उसका मुंह जो है वो खोलता है। यू मे से दैट शूडोपोडिया एज द माउथ एंड फीड्स ऑफ द अमीबा। ओके, सो ये जाके उसका जो शूडोपोडिया है उसको ओपन करता है और अपने उस शूडोपोडिया के अंदर उस फूड को इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। फिर ये जो फूड है ये ट्रैप हो जाता है। ये जो वैक्यूल्स बहुत सारी इसमें प्रेजेंट है, फूड वैक्यूल्स इनमें। फिर ये जो वैक्यूल्स हैं, ये वैक्यूल्स बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती है और वो फूड को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ती है। जैसे हम कैसे अपना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ती है हमारी बॉडी सिंपल सब्सटेंस में, वैसे यहाँ जो काम होता है वो किसका होता है? वैक्यूल्स का होता है। नाउ अब जो उन्होंने एब्जॉर्ब किया सब्सटेंस वो किसके लिए हेल्प करता है? वो उनकी ग्रोथ में और मेंटेनेंस में और उनके मल्टीप्लिकेशन में, मतलब 1 से 2 होने में हेल्प करती है। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो उनका बाहर निकल आता है।
ओके जैसे हमारी बॉडी से एक्सपेल होता है वैसे इनका भी इजेक्ट होता है. सो द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म. सारे ऑर्गेनिजम्स में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो सेम है. ठीक है. इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ओके सो आप इस चैप्टर को 2 बार रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. जब आपको अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं. ठीक है. Now keep studying and keep asking your doubts. Okay? Thank you so much and have a nice day.